Hello students, we are in the third lecture of class 6, chapter 1, part 3. The name of the chapter is Computer System. So in the previous chapter, we have learned about the different types of computer, means classification of computer by size, the hardware, input device, output device. Now we will discuss today is software. Under this software, two categories are there: system software and application software. In system software, there are system software is categorized in 5 parts: operating system, drivers, compilers, interpreter and assembler. We will discuss in detail in this lecture. Application software, the package and utility. Then we will study about the computer language. There are 4 types of computer, basically 4 types of computer language. That is low level language, machine language, assembly language and high level language. I hope that in the previous chapter you have made the notes and tried to solve the confusion. So let us start with the what is a software? Software is a set of codes or instructions which are given to the computer to perform the specific task. मतलब सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ कोड या एक सेट ऑफ कोड्स है या इंस्ट्रक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या करना है, या जब वो सेट ऑफ कोड्स और इंस्ट्रक्शन को देखता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है. The term software refer to the computer program that are needed for running or operating a computer system. Software क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि यूज किया जाता है कंप्यूटर को रन कराने में या ऑपरेट करने में. A program is a sequence of step-by-step instruction to perform a specific or particular task. प्रोग्राम क्या है? एक सीक्वेंस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि कब कैसे कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, स्टेप को परफॉर्म करता है, मींस कि हमारे टास्क को फुलफिल करता है. Then what is a system software? System software refers to a program designed to control the operation of computer system. System program ऐसा प्रोग्राम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है. जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे पूरे हार्डवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, मेमोरी यूनिट को मैनेज करता है, स्टोरेज यूनिट को मैनेज करता है, कई सारे उसके फंक्शंस हैं, तो वो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम. These program assist in running application program. ये क्या करते हैं, सिस्टम प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म देते हैं या इसको हेल्प करते हैं उसको रन कराने में. System software can be classified into operating system, driver,
system software can be classified into operating system, driver, compiler, interpreter and assembler. इन 5 चीजों में सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज डिवाइड किया जाता है. Move on to the operating system. An operating system is the master control program. Master control program क्या होता है हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम. क्यों? क्योंकि यही सारी चीजों को मैनेज करता है और जो मैनेज करता है उसी का मास्टरमाइंड यूज होता है. It controls the flow of signal from the central processing unit to the various part of computer. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बाकी सारे डिवाइसेस के लिए, बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए ये सिग्नल प्रोवाइड करता, फ्लो कराता है. When the computer is switched on, the operating system are, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हमारे सीपीयू में जितनी भी चीजें, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको ये सिग्नल सेंड करता है कि उसका फंक्शन सही हो रहा है या नहीं. माउस को सेंड करेगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, देन जो भी डिवाइसेस लगे होंगे, इंटरनल डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेमोरी, पेन ड्राइव, हर चीज को चेक करता है. चेक करने के बाद फिर आगे बूटिंग करता है, अदरवाइज वो वहां पे एरर शो करता है. The operating system are Windows, Android, Linux and Mac OS. Operating system के एग्जांपल कौन से हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो कौन सा है? विंडोज. विंडो में कई वर्जन है, जो 7, 8, 8.1, 10, ये सब क्या है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन. लाइनेक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, मींस जो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है. Then come to the driver. A driver is a computer program that enable a computer to interact with another hardware device such as printer, a pen drive, etc. ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो दो हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है. जैसे हम माउस यूज करते हैं तो माउस में भी ड्राइवर होता है, और ड्राइवर क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को और माउस को आपस में इंटरैक्ट करता है. कीबोर्ड का ड्राइवर होता है. कोई भी डिवाइस हम यूज करते हैं उन सारी डिवाइस का ड्राइवर होता है. बिना डिवाइस ड्राइवर के हम कोई भी डिवाइस यूज नहीं कर सकते. पहले हम ड्राइवर बाहर से इंस्टॉल करते थे, बट अब क्या होता है? जो डिवाइस देखते हैं उसी में इनबिल्ट होता है. तो जैसे ही हम डिवाइस अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं वो ऑलरेडी वहां से इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देता है. Then third is compiler. A compiler is a program that translates a high-level language program into machine language. Compiler का क्या नाम है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक ही काम होता है. वो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं? मशीन लैंग्वेज. मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज जिससे हम कमांड देते हैं, और मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है. जैसे बाइनरी मींस 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर
समझता है तो ये क्या करता है, हमसे कमांड लिया और मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके मीन 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करता है, और फिर कंप्यूटर से 0 और 1 के फॉर्मेट को कन्वर्ट कराता है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में और हमें सेंड करता है। The compiler first read the whole program and then at once go translate it into machine language. इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक डिफरेंस होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस होता है कि कंपाइलर पहले पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार एग्जीक्यूट कराता है और एग्जीक्यूट कराने के बाद सारे जो एरर है वो एक साथ लाइन बाय लाइन पूरा वहां पे डिफाइन कर देता है। मतलब सारी लाइंस को एक बार पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें जो भी एरर है वो वहां पे डिफाइन कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है एक लाइन पढ़ा, जो एरर आया जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे वो सेकंड लाइन पे नहीं जाएगा। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। It reports error to the user along with the line number so on which the error occur. Compiler error का line number बताता है कि कहां पे error आ रहा है। The translated program is called the object program or object code. जो translated program है उसको object program और object code कहते हैं। This object program is saved permanently for future use और इसको हम future use के लिए ये object program को सेव कर लेते हैं। Next is interpreter. An interpreter is a program that translates one statement of high-level language program into machine code and executes it. एक लाइन को उसने क्या किया? प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से अगर एरर आ गया तो वो वहीं पे वेट करेगा जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करते। It then does the same for the next statement and proceed in this way till the statement in the program. इसी तरह वो सारे स्टेटमेंट को पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है और आगे बढ़ता है। The program has been translated and executed. An interpreter is a smaller program than a compiler. Interpreter compiler से छोटा प्रोग्राम होता है, मींस कि उसकी स्टोरेज जो होती है वो छोटी होती है। The object code produced by interpreter is not saved. जो इंटरप्रेटर का ट्रांसलेशन होता है वो सेव नहीं होता है। If the same instruction is needed later, the process will be repeated. और जो फिर से उसको इंस्ट्रक्शन लेना होगा, फिर से उसको इंस्ट्रक्शन अगर हमें चाहिए होगा तो वो क्या करता है? फिर से सारे प्रोसीजर को करता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड को सेव करता है, बट ये इंटरप्रेटर क्या करता है? नॉट सेव। मींस कि वो छोटा सा प्रोग्राम खुद है और उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो ऑब्जेक्ट कोड को सेव कर सके। The next is assembler. An assembler is a program that translates an assembly language program into machine language program. Assembler क्या करता है? Assembler का काम है assembly language को machine code में ट्रांसलेट करना और मशीन कोड को assembly language में ट्रांसलेट करना। यही काम है assembler का।
असेंबलर का काम। मशीन लैंग्वेज से मशीन, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है और वो किसको असिस्ट करता है, हेल्प करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर टू डू सेम टाइप ऑफ वर्क। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है ताकि हम सेम टाइप ऑफ वर्क कर सकते हैं। जैसे लेटर टाइपिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमएस वर्ड। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट। थर्ड, कैलकुलेशन के लिए एमएस एक्सेल। डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेल। ये क्या है? एमएस ऑफिस। का पैकेज है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम काम करते हैं तो हमें हेल्प करते हैं। जैसे हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं तो हमें अगर किसी को मेल सेंड करना हो तो हम किससे करेंगे? टाइपिंग से ही करेंगे। और टाइपिंग क्या है? एमएस वर्ड। प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो अच्छा प्रेजेंटेशन हम कहां बनाएंगे? एमएस पावर पॉइंट। कैलकुलेशन करना होगा तो एक्सेल पे करेंगे और डेटाबेस बनाना होगा तो एमएस एक्सेल। फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एक पैकेज है और एक यूटिलिटी। रादर यूटिलिटीज क्या होता है? ये अलग से एक सॉफ्टवेयर मतलब कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की जो हमें हेल्प करता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है तो वो क्या करता है? हमें हेल्प करता है। जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया। ये सब क्या होते हैं? हमें हेल्प करते हैं। अगर नहीं होता है तो हमें कोई उससे लॉस नहीं होता। A package is a computer application consists of one or more programs created to do a particular type of work. Package include the following. पैकेज क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम। मींस कि ये सब क्या है? एक से ज्यादा प्रोग्राम और ये एक साथ अगर साथ में रख देते हैं तो ये एमएस ऑफिस पैकेज रूट बन जाता है। पैकेज इंक्लूड द फॉलोइंग। ये पैकेज जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? वर्ड प्रोसेसर लाइक वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, graphics and presentation software like Microsoft PowerPoint, database management system like Microsoft Access, MySQL and Oracle. डेटाबेस के लिए अकाउंटिंग टैली, अकाउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं? टैली ERP को यूज करते हैं। देन
स्प्रेडशीट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और कैलकुलेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट इज यूटिलिटीज। अ यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम डिजाइन्ड टू डू मेंटेनेंस वर्क ऑन द सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम को मेंटेन करता है, और ऑन सिस्टम कंपोनेंट या फिर उसके कंपोनेंट्स हैं उनको मेंटेन करता है। जैसे डिस्क क्लीनर, वो क्या करता है, स्पेस को क्लीन करता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, जो फाइल्स हैं उनको एक साथ करता है, स्पेस को एक साथ कर देता है। यूटिलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग: बैकअप सॉफ्टवेयर लाइक अमांडा एंड बॉक्स बैकअप। एग्जांपल इसके क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के? बैकअप सॉफ्टवेयर, disk defragments, antivirus, disk क्लीनर, ये सब क्या है हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इनमें ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। नाउ मूव ऑन टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। हर किसी को समझने के लिए एक लैंग्वेज यूज करना होता है। अगर हमें समझना है तो हमें या तो इंग्लिश आनी चाहिए या हिंदी आनी चाहिए, या फिर ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जो कि हम इजीली समझ सके। अगर हमारे सामने कोई फ्रेंच में आके बात करेगा तो हमें नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कंप्यूटर लैंग्वेज 4 तरह के हैं, और कंप्यूटर केवल और केवल क्या समझ सकता है? बाइनरी कोड, जिसको हम बोलते हैं 0 और 1, या फिर ऑन ऑफ। ऑन मतलब 1 और ऑफ मतलब 0। क्यों ये क्यों होता है? क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन केवल और केवल ऑन या ऑफ समझता है। जैसे अगर हम बल्ब को जलाना होगा, या तो वो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। A computer language, also called programming language, is a language used to write and develop software program for the computer. Computer language क्या होता है? Programming language होता है। किस लिए यूज किया जाता है? To develop a software program for computer. Computer language can be classified into 2 broad categories, low level and high level. बेसिकली ये 2 ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज आर ऑफ 2 टाइप्स, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिवाइड होता है, मतलब 2 बेसिक पार्ट है। Code written on one machine might not work for the other. अगर एक मशीन के लिए हमने कोई प्रोग्राम, कोई कोड बनाया है, तो ये हो सकता है कि वो दूसरे मशीन पे रन ना करे। Then machine language. Machine language is a language that a computer understands and can execute directly without translation. मशीन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझता है
और बिना उसको ट्रांसलेट किए हुए उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब उसको अगर समझ में आ गया तो फिर ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वो उसी पे वर्क कर लेगा। In machine language, each instruction is written in the form of a long string of 0 and 1. मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो 0 और 1 के फॉर्मेट में लॉन्ग स्ट्रिंग होगा, बहुत लंबी लाइन होगी, जैसे 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0, इस तरह का उसके पास नंबर होगा। इसको हम कई तरह के नंबर बोलते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, तो इस तरह के वो नंबर्स होते हैं। बेसिकली हम बाइनरी नंबर में कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाते हैं, मींस कि कंप्यूटर उस चीज को समझता है। A program written in machine language run very fast because no translation is required. These programs are however very difficult to run. हमें 0 और 1 के फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी इसमें डिफाइन किया गया है हमें नहीं आता, केवल जिसने इसको क्रिएट किया है उन्हें ही पूरा आता है। तो हमें इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, हाई लेवल लैंग्वेज। बट अगर हम मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ना हमें कंपाइलर चाहिए होगा, ना इंटरप्रेटर, ना असेंबलर, कुछ नहीं चाहिए होगा। वो क्या करेगा, डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को वो कमांड देगा, कंप्यूटर सिस्टम उसको ट्रांसलेट या एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। Assembly language was the first computer language to use word made with letters. ये ऐसा पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था जो कि क्या यूज करता था, वर्ड्स यूज करता था, जो कि लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से, मतलब A to Z के बीच में जो वर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे प्रोग्राम, इन सारी चीजों को वो क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। इट वॉज डेवलप्ड इन 1950। असेंबली लैंग्वेज में इसको बनाया गया। In assembly language, each instruction to the computer is written using a letter combination that tells the computer where the data is and what to do with it. Assembly language ऐसा कॉम्बिनेशन था लेटर का जो कि बताता था कि कंप्यूटर को कहां, वेयर, मतलब डेटा कहां है और उस डेटा पे क्या वर्क करना है। Like machine language, assembly language is also machine dependent. जैसे कि ये एक मशीन के लिए बनाया जाता है फिर दूसरे पे वर्क नहीं करता है, वैसे assembly language भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो इसलिए ये दूसरे मशीन, अगर मशीन नंबर 1 पे हमने प्रोग्रामिंग की है और चाहते हैं कि मशीन 2 पे वो रन कर जाए, तो वो क्या नहीं रन करेगा, यहाँ पे हमें फिर से बनाना पड़ेगा। इसीलिए फिर आया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ कंप्यूटर बाय द मिड 1950 लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। 1950 के मिड में इतना ज्यादा कंप्यूटर का यूज होने लगा कि वहां पे अब हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत आने लगी और उस टाइम हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। These languages use English and mathematical symbol and they made computer programming simpler. इसमें क्या हुआ, इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल को यूज करके हाई लेवल लैंग्वेज बनाया गया और कंप्यूटर प्रोग्राम को और सिंपल कर दिया गया।
क्यों? क्योंकि जब हम उस लैंग्वेज में जो हम बोल लेते हैं उसको यूज करेंगे तो इजीली हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वो हमारे लिए सिंपल कर जाएगा। A program in a high level language is called a source program. High level program, high level language में जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। We call this that source code. It cannot run directly, but high level language किसका यूज करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन कौन से हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। तो हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर पे रन नहीं करता है। इट मस्ट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड फर्स्ट। या तो ये कंपाइल होगा या तो फिर इंटरप्रेट होगा पहले। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट। ये पहला प्रोग्राम था जो मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर हम मशीन 1 पे हम इसकी प्रोग्रामिंग कर दिए हैं, इस पे रन कर रहा है, तो वो मशीन 2 पे भी रन करेगा। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब अब हम चाहे इंडिया की मशीन में रन कराएं, चाहे अफ्रीका की मशीन में रन कराएं, उनके कोई भी सिस्टम पे रन कराएं, पाकिस्तान के सिस्टम पे रन कराएं, सब जगह वो रन करेगा। They can be run on different types of computer without change. बिना किसी चेंज के वो सारे टाइप ऑफ कंप्यूटर पे रन करेगा। एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? बेसिक हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। देन कोबोल, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। देन फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। देन सी, सी प्लस प्लस, जावा, ASP, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सारे नोट्स कॉपी में होने चाहिए। This is all for today. In the next class, we will do the exercise as well as question answer. So you have to buy the book, because the exercise and question answer you have to do in the book as well as in the copy. You have to get it checked on the respective date by your subject teacher. Okay? थैंक यू। और इस वीडियो को एटलीस्ट 4 से 5 टाइम्स देखना, नोट्स कंप्लीट करना, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना क्यूरी सेंड कर देना। आई विल सॉल्व इट। थैंक यू।